I think when we as architects, when we design, we have a larger responsibility. We are not just making a building, we are making our cities, we are making our world actually. So I'm saying we need to have an architecture that's inclusive. आर्किटेक्चर में सब कुछ होना चाहिए. अगर सब कुछ है तो बायोडाइवर्सिटी चलती रहेगी. प्लांट्स भी चाहिए, एनिमल्स भी चाहिए. अहमदाबाद के हर एक घर में अपार्टमेंट में 2 फुट का छज्जा होता है ना, जो फालतू पड़ा रहता है ना. वो 2 फुट के छज्जे में यू कैन ग्रो ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स. व्हाट वी नीड इन आवर आर्किटेक्चर इज सपोर्टिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स. It's time to acknowledge and honor the brilliant minds who have joined us today to share their valuable insights and expertise. Moving ahead, I'd like to welcome Lokendra Balasaria, an architect, urban planner, and urban ecologist who is dedicated to sustainable design and urban regeneration. Welcome, sir. Some months back, I was in Bhopal. I was invited for an event in Bhopal, and the topic was ecology and architecture and health. बहुत अच्छे लोग आए थे अलग अलग जगह से, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे. And mostly when they talk about architecture as being nature friendly, as being sustainable, that's a term which is used, they talk about these kind of homes. मिट्टी का घर, which is very good. But after the whole thing got over, I got a little worried. I said, why do we stop it making mud homes as the final epitome of being eco-friendly? There has to be something more than that, right? So last 3-4 months have been working on that, looking at how we can make an architecture which is more ecologically meaningful. So I don't call it sustainable because sustainable आप उसको सस्टेन करते हैं जो अच्छा होता है. अच्छे से तो हम बहुत आगे बढ़ गए, अच्छे को पीछे छोड़ रहे हैं. तो अभी रीजनरेशन का टाइम है. तो आई टॉक अबाउट रीजनरेटिव इकोलॉजी. नेक्स्ट प्लीज. So I said cities occupy only 3% of the Earth's land area actually, but they are responsible for 75% of energy demands. Almost 60% of human population resides in cities. So that's the kind of impact, and cities are made by architects, right? So I said, let's look at it from a different perspective. Can we do something about this? Can we make a change there? Next, please. So I said, let's call it ecological architecture because architects make the cities. So not just buildings, but also cities, the whole urban ecology. So we talk about the whole urban ecology and see how our architecture can make a difference. Because architects को उनकी पढ़ाई में इकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता. मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था 40 साल पहले, और आज भी नहीं पढ़ाया जाता. So we don't know about ecology, even though there are discussions on ecology, but there is no education per se. Next, please. So this is the kind of data, which talks about what cities do. So 80% of the ecological footprint comes from cities. We have a huge biodiversity loss. So as city expands, trees are cut, animals lose their place, and the land becomes little less populated with other organisms and other trees. So there is a biodiversity loss. Fresh water का डिप्लीशन हो रहा है हर एक शहर में. बेंगलोर वाले जिम में जहाँ नहाने जाते थे, याद है ना, तो बुरे हाल थे, है ना. एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत बुरे हाल है एयर पॉल्यूशन के. एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी है because we use lot of chemicals to kill whatever things. There is a temperature increase, so cities are becoming warmer. Ahmedabad, Gandhinagar से 6-7 डिग्री ज़्यादा गर्म होता है. And there is a waste disposal. So there are many issues, which we talk about. Now I feel architecture can actually address all these issues. We haven't been relating architecture to these issues, but I think we can relate. Next, please. Ecological घर किसको बोलेंगे? ऐसे को, बट ये तो बना नहीं पाएंगे. शहरों में तो नहीं बनेगा. नेक्स्ट. या ऐसा ग्राफिक डिजाइन वाला
जो है तो वैसे कांच का डब्बा फुल ही है, एयर कंडीशनर और थोड़े पौधे वौधे लगा के। नेक्स्ट प्लीज। या बहुत ही एलियन वाला किसको बोलेंगे? ये सारे एग्जांपल्स विजुअल हैं, इसमें फंडामेंटल कंसिडरेशंस नहीं है इन सब में, है ना? तो विजुअली लगता है कि हाँ कुछ हरा है, कुछ अलग है, बट डीपर मीनिंग होना चाहिए, वो डीपर मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सो अगेन आई एम कमिंग टू अर्थ mud architecture, which is very good. I am not saying this is bad, but I am saying we can do much more than this. अभी क्या होने लगा कि मड की बिल्डिंग्स बनाते हैं, थोड़ा कांच लगाते हैं और एसी भी लगाते हैं। So mud is more of a emotional satisfaction कि मेरा घर मिट्टी का है, एडवांटेजेस हैं उसके, VOCs कम होते हैं, the breathability is more, temperature comfort is there. Okay. When this house breaks, probably the debris are much less. Most of it mixes back into the soil. So there are a lot of advantages. But I think, can we make it more? Next. So I'm saying, can we support natural systems? Now, this is a very important thing which we should understand. Natural systems. क्या होता है? आप में से किसी ने मरी हुई स्क्विरल देखी है? लास्ट 1-6-12 महीनों में नहीं देखी होगी, नहीं? मरी हुई चिल देखी है? नहीं देखी होगी, नहीं? क्यों नहीं देखी है? दो कारण होते हैं। एक तो द मोमेंट द एनिमल डाइज, देयर आर सो मेनी अदर एनिमल्स रेडी टू ईट इट अप। सो देयर आर कैट्स, डॉग, क्रोज, काइट्स वगैरह, ईगल वगैरह, दे पिक इट अप एंड दे क्लीन द एरिया। इन सिटीज वी हैव स्टार्टेड हैविंग अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्लीनिंग इट। इसलिए शहरों में कौवे दिखने कम हो गए, बिकॉज कौवे दूसरे मरे हुए जीव को खाते हैं ना, तो मरे हुए जीव तो है नहीं अभी, क्योंकि सबको झाड़ू मार के साफ कर दिया जाता है। वल्चर्स नहीं दिखाई देते, कि बड़ी जो गाय भैंस है जिनको वल्चर्स खाते हैं वो भी हम नहीं रखते, हम उनको सब जगह बाहर कहीं डाल के आते हैं या इंडस्ट्रीज ले जाती हैं उनको। Okay, so we have broken the food chain. So because you break the food chain, certain animals are missing. So but nature has a beautiful system of building back the equilibrium. पानी कम हुआ, तालाब भर जाएंगे, अर्थवर्म आएंगे, चींटियां छेद करेगी, मिट्टी को फॉलो कर देगी, पानी अंदर उतर जाएगा। तो it actually recharges the aquifer again. So nature has a system, and in this system everything is needed. गांडो बावड़ कच्छ से सूरत तक पहुंच गया, कैसे पहुंचा होगा? बुलबुल उसके बीज खाती है, और बुलबुल जब वो कहीं पे जाके उसकी ड्रॉपिंग करती है तो वहां पे गांडो बावड़ होता है। उसको ये कड़ी पत्ता, करी लीव्स भी उसको अच्छे लगते हैं, उसको कोई भी अच्छी लगती है। सो लॉट ऑफ दीज बर्ड्स दे ईट एंड स्प्रेड आउट थिंग्स। सो ecology has a system. So what I'm saying is we have to understand these systems and support the systems. Architecture unlucky एक प्रोडक्ट बन गया है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, डिजाइन करता है, वो बन जाती है, फिर आर्किटेक्ट भी लग जाता है। फिर बिल्डिंग कैसे मैनेज होती है, कैसे रन करती है, आर्किटेक्ट इज नॉट इन्वॉल्व, बट वी स्टिल हैव अ सिस्टम इन द बिल्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए जाते हैं, एसी ऑन ऑफ किया जाता है, पानी की टंकी भरी जाती है, झाड़ू पोछा किया जाता है, दरवाजा बंद खोला जाता है। सो देयर इज अ प्रोसेस। सो कैन वी इंक्लूड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन दैट? आर्किटेक्चर का प्रोडक्ट है, उसको एक्सपांड करते इकोलॉजी में। जैसे मिट्टी का घर एक प्रोडक्ट बना, बट उसको एक प्रोसेस में ले जाते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझनी चाहिए। अगर इकोलॉजिकल सिस्टम समझ गए, हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे। हमें पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या करने की जरूरत है। सब एक्वीफर ड्राई हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर वो पता होगा तो एक्वीफर रिचार्ज कर लेंगे हम। नेक्स्ट प्लीज। सो आई एम सेइंग वी नीड टू हैव एन आर्किटेक्चर दैट्स इंक्लूसिव। आर्किटेक्चर में सब कुछ होना चाहिए। अगर सब कुछ है तो बायोडाइवर्सिटी चलती रहेगी, प्लांट्स भी चाहिए, एनिमल्स भी चाहिए। हमें लास्ट बहुत सारे सालों से ये सिखाया गया, अपने पेट जानवर के सिवाय सारे जानवर डेंजरस है। तो कीड़ा दिखा तो मार दिया, सांप दिखा तो मार दिया, है ना?
घर में थोड़े बहुत बारिश के टाइम कीड़े आ गए तो स्प्रे करके मार दिए, मक्खी ज्यादा हो गई तो मार दिए, मच्छर हो गई तो म्यूनिसिपल की वैन आके धुआं करके मार देगी। तो वी engineered this whole system of mass killing. That's what human beings have done. We have started killing everywhere, and because of that, we don't have a tolerance to other animals. घर में छिपकली आती है तो बहुत तकलीफ होती है ना, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा छिपकली ने किसी की जान ली है या किसी को बाइट भी किया हो बेचारी ने, बट वो देख के तकलीफ हो जाती है, पता नहीं क्यों। कॉकरोचेस अगेन वो देख की तकलीफ हो जाती है, अगर वो पाँव के पास आ गए तो मार डालते हैं हमेशा। But they all have a purpose, they all have a role. So I'm saying, can we look at inclusive architecture in a slightly different way? घर में छिपकली और कॉकरोच भरे हुए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, but I'm saying can we change that attitude a little bit? So we say कि नहीं ये रहेंगे। Next please. B. Let's start with B. This has been declared कि सबसे important animal on this earth, even more important than human beings. 75% of our food is because of bees. They cross-pollinate. Most of the plants they reproduce because of bees. Flower to flower, जैसे दूधी के पौधे में फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग उगते हैं। अगर बीज उनको क्रॉस पोलिनेट नहीं करेगी तो दूधी नहीं उगेगी। और ये हमारे घर पे हमको रियलाइज हुआ कि दूधी नहीं उग रही थी, तो पता चला कि 6th फ्लोर पे बीज ही नहीं आ रही शहर में। तो फिर आप एक कॉटन बड लेके आप मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को क्रॉस पोलिनेट करने बैठो, जब पता चलता है कितना डिफिकल्ट वाला काम है। तो दे आर बिगेस्ट पॉलिनेटर्स एंड वो लेफ्ट साइड वाला भंवरा है, वो भंवरा जब बजिंग करता है अपने पंखों से तो इट डज क्रॉस पॉलिनेशन, डजंट एक्चुअली पिक अप पोलन फ्रॉम वन टू अनदर, इट डज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पॉलिनेटिंग। सो दिस बीज आल्सो डज पॉलिनेशन। आपको इसमें पोलन दिख रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो कितना इंपॉर्टेंट है, farmers are getting these dabbas put in their खेत to increase production. So they pay this beekeeper a lot of money. So beekeeper would come with the dabbas, put it in the khet, and the increase in production is between 20 to 40%. That huge production. सिक्किम में जब उन लोगों ने पेस्टिसाइड यूज करने बंद किए, because सिक्किम is the world's first 100% organic state. So सिक्किम में within few months उनका certain product का production increase है 7%. So bees, they are the most important thing on this earth. Next please. Only thing is, not all bees produce honey. अपन हिंदी में या गुजराती में मधमाखी बोलते हैं, but बड़ी माखी मध वाली नहीं होती। इंडिया में there are almost 700 bee types. उसमें से 5 या 6 ही ऐसी है जो हनी बनाती है, जो hives बनाती है। बाकी सारी ग्रासलैंड में, सब नदी के किनारे, पेड़ के छेद में, ब्रिक के छेद में रहती है। So can our building start giving accommodation to them? Next please. ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे बिल्डिंग में, कुछ बैम्बू लगा सकते हैं, कुछ लकड़ी के पीस लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कुछ दीवारों में पैरापेट में छेद कर सकते हैं। सो इफ वी मेक आवर बिल्डिंग्स गिव लिटिल स्पेस टू बीज, शायद हमारे शहर में बायोडाइवर्सिटी अपने आप बढ़ जाएगी, बिकॉज बीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये पोलन नहीं खाती है, बेचारे दूसरे जानवरों को नहीं खाती है ये, लेकिन बीज को बहुत जानवर खाते हैं। अगर बीज आए तो बहुत सारे बर्ड आएगी। एक ग्रीन बी ईटर है ना, वो आ जाएगा, बहुत सारे बर्ड आ जाएंगे। So bees are the most important. If they come, they will help other plants also come. They will help other birds also come. So bees are the bees. So our architecture, parapet में तो होल कर सकते हैं ना, पर कपबोर्ड वॉल में कर सकते हैं। तो ड्रिल से छेद ही करने हैं, रोड भी करना है, हाँ, कहीं कुछ बैम्बू लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So there are now products like this which are being manufactured. इसमें bricks have hole in them
So birds can stay, bees can stay, so they have this kind of bricks which are available now, but we can do it ourselves also. So these are very easy. Next please. Bees के बाद में birds. So birds are the biggest gardeners of this earth. हम जितने पेड़ उगाते हैं उससे बहुत ज्यादा पेड़ बर्ड्स उगाते हैं। आपकी पैरापेट पे पीपल का पेड़ उगता है, बरगद का पेड़ उगता है। क्यों? बरगद के लाल लाल वो बॉल जैसे फ्रूट्स होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। आप उसको तोड़ के उगाइए, नहीं उगेगा। बट अगर वो बर्ड उसको खा के उसकी विष्ठा करता है तो उसमें से उगता है। तो बर्ड्स व्हेन दे गो एंड ड्रॉप ऑन द पैरापेट्स उग जाते हैं पौधे। सो बर्ड्स आर द बिगेस्ट ऑफ द गार्डनर्स। सो आई वाज अगेन टेलिंग यू गांडो बावर फ्रॉम सूरत, कच्छ टू सूरत, इट्स बिकॉज ऑफ बुलबुल। So a lot of these kind of things happen. So can we make some places for the birds? Old city में वो building के अंदर होल करते हैं, मटकी रखते हैं, जिसमें parrots रहते हैं. So bees, birds, can our architecture start having them? I'm not giving you solutions because आप सब creative लोग हो, आप सब बना लोगे. तो मैं तो केवल कुछ thoughts generate कर रहा हूँ, कुछ idea generate कर रहा हूँ. ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये हमने हमारे घर पे किया हुआ है। सो ये कोई थियरी नहीं है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो अगर मेरी छत की टेरेस पे आप सवेरे आओगे तो आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे। अभी सनबर्ड नेस्ट बना रहा है वहाँ पे, स्केली ब्रेस्टेड गुनिया नेस्ट बना के बैठी है। बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स आती है। सो लॉट ऑफ दिस एनिमल्स कम देयर। नेक्स्ट प्लीज। So birds come. See, this is a very well-established science. Depending on the size of the opening, different birds will come. So there are people who have spent their whole life working on their habitat, and then these people also know कि इनके लिए कैसे पेड़ चाहिए. So when we do a bee workshop, we tell them how to make the bee home, and we also tell them what plants to grow. जब ये प्लांट्स ग्रो करोगे तो आपको ये वाली बटरफ्लाई और ये वाली बीज मिलेगी। सो उनको बता देते हैं। तो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप पॉट्स में उगा सकते हो, आप रास्ते पे उगा सकते हो। तो ऑल दिस एनिमल्स विल स्टार्ट कमिंग, एंड व्हेन द एनिमल्स कम यू ब्रिंग सम प्लांट्स एंड द फुल साइकिल देन स्टार्ट्स हैपनिंग। वेरी इजी। तो बर्ड्स कैन बी देयर, इट्स ओके। सो व्हेन यू प्लांट सम ऑफ दिस थिंग्स इवन बटरफ्लाइज विल कम। सो बटरफ्लाइज के लिए देयर आर स्पेसिफिक होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट क्या करता है? इसको कुछ बोलना, होस्ट प्लांट क्या करता है? होस्ट प्लांट का मतलब क्या होता है? वो अपने अंडे उस पे देते हैं। अंडे देने के बाद में उसमें से कैटरपिलर निकलता है जो उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। So there are specific host plants and there are nectar plants जहाँ से उनका खाना बनता है। ठीक है। उसके सिवाय there are alkaloid plants। alkaloid plants में जो मेल बटरफ्लाई होता है उसको वहाँ से alkaline मिलता है, which alkaline is required during reproduction। So ये जो ऐसे वाले पौधे बहुत कम हैं। आप कभी जाओगे तो ऐसे पौधों पे भरे हुए रहेंगे बटरफ्लाइज। तो एक बटरफ्लाई वाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल थीसिस है આ દારૂનો અડ્ડો. દારૂના અડ્ડામાં બધા ભાઈઓ મળે એટલે બધા મેલ બટરફ્लाई ત્યાં હોય एंड इट वाज एक्चुअली फील्ड अप। अगर आप देखो तो आपको आश्चर्य होगा कि कितने सारे मेल बटरफ्लाई एक ही पौधे पर लगे हुए हैं। तो these are systems. So once you know the system then you can intervene, then you can make it happen। और वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग सबसे आ जाता है। सो बटरफ्लाइज नेक्स्ट प्लीज। सो what we need in our architecture is supporting all life forms। हमारे पुराने जमाने में घर बनते थे ना, तो घर के बाहर एक छोटी सी कुंडी बनती थी जिसमें पानी भरा जाता था, और एक शैलो कुंडी होती थी जिसमें खाना डाला जाता था। तो रास्ते के कुत्ते, गाय, बैल, वटेवर जो भी जानवर थे वो आके वहां पे पानी पीते थे। सो प्रोबेबली एज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन वो एक नो हाउ, एक नॉलेज थी।
एंड वो छोटी छोटी लड़कियां लड़के घूमते रहते थे जो उनका गोबर उठाते थे फटाफट, एंड दैट गोबर गॉट यूज्ड अप इन मेनी वेज इन होम्स एंड व्हाटएवर. So there was a symbiotic relationship which probably our cities have forgotten about. So can we bring some of those relationships back? Because cities को हमें healthy बनाना है. अहमदाबाद में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, शायद और दूसरे शहरों में नहीं है. So which is a very bad indicator, है ना, इतने लोग बीमार हो रहे हैं. तो every life has a role. And जैसे मेरी सोसाइटी में कुत्ते नहीं आने देते हम लोगों ने जाली लगाई है कंपाउंड वॉल पे, गेट पे जाली लगाई है, चौकीदार को बोल के रखा अगर डॉग आता है तो लकड़ी से मारेगा. ठीक है. सो देयर आर नो डॉग्स व्हिच कैन एंटर आवर सोसाइटी. सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, कैट्स डोमिनेट द सोसाइटी. तो बहुत बिल्लियां घूमती है हमारी सोसाइटी में, और बिल्लियां ऐसी होती है कि वो टॉप फ्लोर के पेंट हाउस में भी घुस जाती है, उसको चढ़ना आता है. तो मैं 2-3 सोसाइटी घूम रहा था, मैंने देखा जहाँ पे भी बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है वहाँ पे बिल्लियां हैं, लेकिन रास्तों में आपको बिल्लियां नहीं मिलेगी. अगेन बंदर आपको पैरापेट के ऊपर वाले लेवल पे मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे, देखो नीचे कुत्तों का राज है. सो एनिमल्स दे डू अ कंट्रोल ऑफ ईच अदर. वंस दे डू अ कंट्रोल यू गेट अ बैलेंस. हमने उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया तो वो बैलेंस बिगड़ गया. अब सोसाइटी में बहुत बिल्लियां हो रही है, कहीं पे भी खाली गमला है तो उसमें बच्चे दे रही है, कि उनको डर ही नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे तो कुत्ते आते नहीं है, तो उन्हीं का राज है. और ये अहमदाबाद के लोग तो बड़े अच्छे हैं, ये तो कोई मारने वाले नहीं बच्चों को. तो देयर आर cats which are increasing in number which I had never seen earlier. Next please. So I was talking about plantation. अहमदाबाद के हर एक घर में अपार्टमेंट में 2 फुट का छज्जा होता है ना, जो खाली पड़ा रहता है ना. वो 2 फुट के छज्जे में यू कैन ग्रो ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स. Only you have to understand what will grow in the north, what will grow in the south, what will grow in the west, and what will grow in the east. So we guide people about that, so you can grow your own food. You can grow some pollinating plants. Okay, so once we have plants there, we have pollinators. We'll have birds there, because they want to eat certain things. So things will start happening then. So you are creating something outside your home, not within your home. Bring that balance back. Next, please. Again, pollinators. ठीक है. Next, please. Our study shows कि अगर आपके पास ये 2 तरह के पौधे, एक 5 इंच का और एक 12 इंच का, तो आप बहुत कुछ उगा सकते हो. इतना ही चाहिए आपको, ज्यादा मिट्टी भी नहीं चाहिए, केवल इतने पॉट की साइज है तो आप बहुत कुछ उगा सकते हो. We will growing that, we will teaching people. Next please. इतनी सारी हर्ब्स हैं, ये खाली हर्ब्स हैं, 25 से ज्यादा तो हर्ब्स हर एक घर में उग सकती है. और मैं फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, मैं बंगलों की बात नहीं कर रहा हूँ. So more than 25 herbs, and these are for human consumption. You can grow these very easily. So I'm saying gardening for apartment. That's another workshop we do. We say gardening for apartment and agriculture for apartment. करके हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये सब सिखा देते हैं. नेक्स्ट प्लीज. और टेरेस गार्डनिंग सब कुछ उगता है टेरेस पे. ड्रमस्टिक उगती है, बनाना उगता है, कोकोनट सॉरी पपैया उगता है, हर्ब्स उगती है, मूली उगती है, भिंडी उगती है, ककड़ी उगती है, दूधी उगती है, सब कुछ उगता है पॉट्स में. So once you start growing, you can grow huge number, and when you grow that, you are actually decreasing the carbon footprint. Like our home is carbon neutral. We have calculated कि हम जितना कार्बन जनरेट करते हैं उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो we are carbon neutral. So we say now every home in Ahmedabad can become carbon neutral. So अगर आप ये ग्रो करते हो तो आप बाजार से सब्जी कम लेके आओगे, आपका किचन वेस्ट आप कंपोस्ट करके खाद बनाओगे और उसी में से प्रोडक्शन हो जाएगा. So we are decreasing the carbon footprint. We started with an ecological footprint of 80%. So how do we decrease that? Next please. So that was about doing things in the home. There are other issues also which I am not talking about. I am just touching
टचिंग ऑन द टॉपिक, स्टार्टिंग अ डिस्कशन एंड मूविंग ऑन। आपको कुछ कहना है इसके बारे में बिफोर किसी को कुछ पूछना? सही क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि एनिमल्स का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल पिजन्स का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है। Why is that? Is that because we are feeding pigeons a lot of food or predators? Very valid question. बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछे हैं। We have observed two things. दाने बहुत जानवर खाते हैं, ठीक है। अपन सोचते कि पिजन बहुत ही शांत बिना झगड़े वाले जानवर है, बट आप एक जगह देखिए जहाँ पे लोग दाने डालते हैं, आपको पिजन के सिवाय कोई नहीं दिखेगा। बाजू में कुत्ता बैठा होगा, वो भी पिजन को नहीं अटैक करेगा। तो पिजन आर वेरी वाइल्ड एनिमल, दे आर ऑल ग्रुप वाले एनिमल्स हैं वो, and when they get into a group, no one gets into fight with them. So that's one reason that it's their character. Second thing is, our urban homes don't have biodiversity. So we don't have too many type of trees. So we don't have too many birds. I have seen जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, वहाँ पे पिजन बहुत कम या नहीं बल्कि के बराबर दिखाई देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई है, उनको चैलेंज करने वाले कोई नहीं है, तो उन्होंने डोमिनेट कर लिया है। और हमारी बिल्डिंग के छज्जे, ऑब्वियसली हम आर्किटेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल बैंड बहुत अच्छे लगते हैं बिल्डिंग में, तो बहुत बैंड बनते हैं, तो उसमें पिजन्स को बड़ा मजा आता है, वहाँ पे झुंड में बैठे रहते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस व्हिच आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू पिजन ग्रोथ। हम दो चीज बोलते हैं, एक तो उनको खाना देना बनता है शहरों में। अगर आपने खाना नहीं दिया, इनफैक्ट किसी को खाना नहीं दिया, पिजन को ही नहीं, आपको बहुत पुण्य कमाना है तो पानी रख दो, because these birds they need water, so keep water and खाना बंद कर दो and start increase biodiversity. If you increase biodiversity नहीं आएंगे। जैसे मेरी टेरेस पे अब पिजन नहीं आते, अगर वो आते हैं तो खाली 1 मिनट के लिए पानी पी के चले जाते हैं। बाकी लोग तो बहुत क्रिप करते हैं, हमारे वो क्या पालक छोटी छोटी होते तो पिजन खा जाते हैं, मेरी टेरेस पे तो नहीं खाते, तो आते हैं पानी पीते भाग जाते हैं। So if you increase biodiversity, they will decrease in number at least. Anything else? मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और मैं बहुत सारे आइडियाज एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें से छान के कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो। Anything you want to say, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It's okay. We move ahead. So we are talking about natural resources. मैंने कहा था availability of fresh water is decreasing. अहमदाबाद में बारिश में रास्ते पे फ्लडिंग होती है और तालाब खाली होते हैं। पता है आपको, ये जितने भी नए जो तालाब डेवलप हुए हैं वो तालाब खाली होते हैं और रास्तों पे पानी होता है। वो कुछ स्पेशल डिजाइन करते हैं कोई लोग, तो ऐसा होता है। एंड क्या हो रहा है, समर्स में पानी नीचे उतर रहा है जमीन में, जो एक्वीफर बोलते हैं वो अभी भी ड्राई होते जा रहे हैं, जबकि हर साल फ्लडिंग हो रही है। तो कहीं एक बैलेंस नहीं है ना। तो वी आर सेइंग हाउ डू यू रिचार्ज, हाउ डू यू फिल अप दोस एक्वीफर्स। बात ये होती है कि नर्मदा में पानी अब की बार कम है तो अहमदाबाद कम आ रहा है, बट अहमदाबाद में जो बारिश हुई उसका क्या, वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट वी स्टार्टेड इज let's capture the rainwater here. So there's one of the easiest thing to do is what falls on your roof. दो तरह के पानी होते हैं, जमीन पे गिरता है, छत पे गिरता है। जो छत पे गिरता है वो साफ पानी है, जबकि छत साफ है, 1-2 घंटे में धुल जाती है छत, फिर पानी जो आता है नीचे आता है वो साफ होता है। उसको एक फिल्टर से हम लोग क्लीन कर देते हैं। सो दिस इज द डाउन टेक पाइप, इसमें ब्रैकेट मार के फिल्टर में जाकर यहाँ पे वाल्व लगता है। तो पहला 1 घंटा पानी धुल जाता है, फिर ये वाल्व बंद कर देते हैं, तो ये पानी डाइवर्ट होकर फिल्टर होके उससे हम डायरेक्टली बोर को रिचार्ज करते हैं। जो आपका सप्लाई बोर है उसी में पानी आप डाल सकते हो। एंड अहमदाबाद के सप्लाई बोर जो 8 इंच डायमीटर वाले हैं मोस्टली, दे कैन टेक 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी आवर। इतना बढ़िया पानी ले लेते हैं। आप एक बोर में एक मॉनसून में 50 से 60 लाख लीटर पानी डाल सकते हो बहुत आराम से, अगर आपने अच्छे से काम किया तो। 50-60 लाख लीटर पानी डाला तो बहुत अच्छा रिचार्जिंग होता है।
And we have also observed if you put fresh rooftop water into your aquifer through the bore well, आपके पानी का TDS कम हो जाता है. Some of the projects 1700 का TDS 1100 तो आ गया है. So the TDS decrease because rainwater is almost nil TDS. So it forms a bubble there and you get low TDS water, which is very healthy. So this is one technique we are talking about. Next, please. And we are guiding societies to install it now. As part of architectural education, we are teaching students in colleges. We are conducting workshops everywhere. So we are saying, can all buildings have this as part of the standard detail? अगर ये स्टैंडर्ड डिटेल है तो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे. हमें पानी के बारे में नहीं सिखाया जाता आर्किटेक्चर में. हमें बोलते कि छेद करना, पानी निकालना, जिंदगी भर पानी मिलेगा. बट इतने सालों बाद में पता चलता है कि नहीं मिलता है जिंदगी भर. So this is something which is being done. So rooftop is one. Second, please. Next. Second is this Khambati Kuwa which you are talking about. This Khambati Kuwa is taking around 75,000 liters of water every hour. एक घंटे में इतना पीता है. पूरे मॉनसून सीजन में अगर हम इसको थोड़ा नीचे वाले भाग में बनाते हैं तो 2.5 करोड़ लीटर पानी पी जाता है. अहमदाबाद का सोसाइटी का एक बोरवेल एक साल में 4 करोड़ लीटर पानी निकाल लेता है. तो ये 2.5 करोड़ लीटर तो डालता है. अगर एक सोसाइटी ने ऐसे 2 खंबाती कुएं बना दिए तो आपने वाटर बैलेंस कर लिया. जितना आप निकालते हो उससे ज्यादा आप थोड़ा डाल दोगे तो आपका एक्वीफर ऊपर आ जाएगा. एक अभी सोसाइटी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे कुछ 700 फुट पे पंप था और मेरे ख्याल से 150 फुट पे पानी था, उसका भी 40 फुट पे पानी आ गया. सो द वाटर लेवल्स हैव इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली इन 4 years टाइम. उनकी के 7 खंबाती कुएं बने थे तो 7 खंबाती कुएं में बहुत पानी जाता है. So there are these techniques which we can use as part of the site development. अगर आपने साइट डेवलपमेंट किया है तो उसमें आप पानी पूरा उतार सकते हैं. हम लोग अभी बोलते हैं जीरो वाटर प्रोजेक्ट. कैंपस का जितना भी पानी गिरा बारिश का वो कैंपस के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो पूरा अंदर उतर जाना चाहिए. सो हम लोग सपोर्ट करते हैं सोसाइटीज को टू मैनेज दिस. नेक्स्ट प्लीज. आई थिंक एज आर्किटेक्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ये पता क्या है, कोई बताए? देखिए बेसिकली ऐसा है कि जमीन के नीचे एक्वीफर कैसे होते हैं. एक्वीफर मतलब पानी. व्हाट इज एक्वीफर? सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो पानी है दैट इज ग्राउंड वाटर. हमारे नॉर्मल टर्म्स में नदी बोली जाती है तो हम सब सोचते हैं कि जमीन के नीचे गंगा जैसी बड़ी सी नदी बह रही होगी. ऐसा नहीं होता है. दैट नदी इज अ टर्मिनोलॉजी. उसपे मूवमेंट होता है पानी का, बट दैट मूवमेंट इज नॉट लाइक गंगा जैसी नदी. ठीक है. तो ऐसा होता है कि ये हमारा सरफेस है, इस पे पेड़ उगे हैं और ऊपर का जो सरफेस होता है वो पानी बिना का होता है बिकॉज उसमें से जो पानी गया वो ये वाली पानी में, ये वाली मिट्टी में सैचुरेटेड हो गया. जैसे समुद्र के किनारे आप अगर मिट्टी को खोदते हैं तो वो पानी से भर जाता है. क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड पानी से है. तो जैसे कुआं पुराने लोग खोदते थे तो कुआं पानी से भर जाता था क्योंकि आजू बाजू पूरा पानी से भरी हुई है मिट्टी. तो ये इसको अनकन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं बिकॉज ऊपर से खुला है, ये कन्फाइंड नहीं है. ऊपर से पानी और आ रहा है इसमें. ठीक है. तो ऐसे कुछ छोटे पंप या कुएं बनते थे और उसके नीचे कन्फाइनिंग बेड होता है. कन्फाइनिंग बेड क्ले या स्टोन या बहुत वेल सॉइल का है जिसके थ्रू पानी जा नहीं सकता है. तो इस पानी को यहाँ पे ये रोक लेता है. बट इस पे कभी कभी क्रैक्स होते हैं कुछ कुछ. तो क्रैक्स के कारण नीचे वाला जो लेयर होता है उसमें फिर पानी चला जाता है और ये फिर पेंस हो जाता है पानी. फिर यहाँ पे वापस कन्फाइनिंग बेड है, फिर वापस कन्फाइंड एक्वीफर है. सो एक्वीफर बेसिकली ऐसा जोन है जहाँ पे मिट्टी है और मिट्टी में पानी भरा हुआ है. बहुत सिंपल है. अगर उसकी जगह नीचे पत्थर है जैसे राजकोट में है, राजकोट में इतनी मिट्टी है उसके नीचे पत्थर है तो पत्थर में क्रैक्स हैं. क्रैक्स में पानी रहता है तो क्रैक्स का पानी निकाला जाता है बोर से. जो उसमें जब ट्यूबवेल किया जाता है तो वो 8 इंच का छेद है, वो इतना बड़ा होता है. ये छोटा सा है लेकिन ये बहुत डीप होता है.
कुआं 30-40 फुट होता है, ये 500 फुट 1000 फुट होता है, तो पानी भर जाता है, उसमें पंप डालते हैं और वो पंप से पानी को खींच लेते हैं। कुछ सीधा। तो जब पंप टेक्नोलॉजी आई तो वी स्टार्टेड पंपिंग आउट लॉट ऑफ वाटर, तो हमने ये वाला तो खाली कर दिया, अब कुआं नहीं बन सकता, ठीक है। फिर हम इधर चले गए, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, वी कैन ड्रिल, लोग यहाँ पे चले गए। ये सेंचुरीज ओल्ड पानी है, 300-400 साल पुराना पानी है। अहमदाबाद में तो ये भी खत्म कर दिया है। अब हम चले गए यहाँ पे, ये लाखों साल पुराना पानी है। तो हम जो अहमदाबाद में पानी ला रहे हैं नीचे से, वो लाखों साल पुराना पानी है। तो कुछ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि जिससे माइनिंग करते हैं आयरन ओर वगैरह, वैसे हम पानी का माइनिंग कर रहे हैं। अभी इतना पुराना पानी निकाल रहे हैं। पृथ्वी के नीचे जो ऊपर पानी है उसमें आपकी नर्मदा, यमुना, भाखरानगर डैम, इंदिरा गांधी कैनाल सब आ गया, उससे 30 से 100 गुना पानी ज्यादा नीचे है या था, पर सारा हमारे यूज के लिए नहीं है। हमारे यूज के लिए ये ऊपर वाले सरफेस वाला पानी था, तो अब वो खत्म हो गया, तो वी नीड टू रिचार्ज इट। अगर ये बेसिक लैंग्वेज हम समझ जाएं तो एज आर्किटेक्ट्स वी कैन स्टार्ट रिचार्जिंग इट, देन वी कैन से कि भैया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेट्स फिल इट अप। नेक्स्ट प्लीज। सो दैट वाज अबाउट second is about car. We all understand as planners now कि ये एक ऐसी चीज है जिसने सारे शहरों की बात लगाई है ना। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन पता है अहमदाबाद में, पिराना से ज्यादा खराब एयर क्वालिटी सैटेलाइट रोड पे होता है। पता है आप लोगों ने कभी चेक किया एयर क्वालिटी अहमदाबाद का? अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा satellite area has worse air quality than Pirana. Right? क्यों होगा? नहीं, they have population of cars और बड़ी गाड़ियां। Satellite is a prosperous area, तो 1000 सीसी वाली 800 सीसी वाली गाड़ी खरीदने में शर्म आती है, 2000-3000 सीसी वाली गाड़ी खरीदते हैं, जो छोटी गाड़ी के बजाय 3 गुना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है और 3 गुना ज्यादा एग्जॉस्ट जनरेट करता है। सो सैटेलाइट एरिया हैज मोर पॉल्यूशन। दिल्ली में जब हवा खराब हुई तो किसको जवाबदार ठहराया गया? किसानों को, है ना, कि द फार्मर्स वर बर्निंग द स्टबल। लेकिन जब बॉम्बे में खराब हुई हवा तो वहां पे तो किसान नहीं थे ना किसान। फिर क्या हुआ? जब अहमदाबाद में हवा खराब है तो यहाँ पे कहाँ किसान है? बट ये बंदी तो सब जगह है, ये गाड़ी तो सब जगह है। So this is what the problem is. So can our architecture handle this problem? So I saw this in China. They had a high-rise building and they did a beautiful thing. So this building, top floors were residential. There were some 3 floors or something which were public amenities. So उसमें स्कूल थी, उसमें कुछ ऑफिसेस थी, उसमें कुछ दूसरी फैसिलिटीज थी, एंड नीचे कॉमर्शियल था। And what the government did as an experiment, this was in Gonzalo, they said if the offices employ people from the same apartment, they get a tax rebate. So offices were encouraged to employ people from the same apartment. So the person who was taking under, he said, बहुत अच्छा है यहाँ पे, माँ बाप और बच्चा दोपहर को खाने के लिए मिलते हैं फ्लोर पे। They just come down or go out. They take the child, they eat lunch or whatever together. Then the child is kept in home or school as per the need, and the parents go back to their work. Evening they are again together, and there are some recreational floors also. So जहाँ पे दोस्त मिल लेते हैं, एक छोटा सा मिनी गॉल्फ भी बनाया हुआ था, उन लोगों ने कुछ रेस्टोरेंट भी बनाए थे, which were exclusively for the residents. तो बोले इन लोगों को बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, डेली वो काम के लिए तो भागना नहीं पड़ता, and elevators were designed accordingly. Of course, that's also energy consuming, but not as much as the cars. So I liked that building. Then I started studying, and I said, "Ki they are not the only people. There are others who are working on it." Next, please.
So there are a lot of people who have done mixed verticals. So mixed verticals mein, because the world is going high rise, so they said let's start looking at this. And they've been doing a lot of these things: hotels, apartments, cinemas, grocery, whatever. So this is a very good solution. I think when we as architects, when we design, we have a larger responsibility. Now, we are not just making a building, we are making our cities, we are making our world actually. So there was this friend, a bitter friend used to say, you architects are makers of this world. Which in a way is true also. Next please. So there's a lot of these experiments which are happening globally now of mixed use verticals. So I'm just throwing this idea, so when some of you get to design, I'm sure Jayesh is designing a lot of verticals, so probably you can start, making such that there are very few cars needed on a daily basis. Next, please. So there are a lot of other issues which we take care of in a building, but I'm not showing all of them. We're talking of composting, so waste management is taken care of. We're using rainwater for gardening, so we do subsoil irrigation, so the rainwater directly goes below the ground and gets used up. And we also tried black water, मतलब टॉयलेट का पानी भी डाला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. 25 साल तो हो गए, 25 साल में वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल. Waste management, low toxicity, so we don't try to use any poisonous things. Solar electricity and indoor air quality is something which we are doing beautifully in indoor spaces. So there is this person called Mr. Mittal in Delhi. उसके lungs बहुत खराब हो गए. So the doctors told him कि भाई अब दिल्ली छोड़ दे, नहीं तो तू मर जाएगा. So he started doing up his office interiors with plants and other things. And ऐसा कहते हैं कि जब अहमदाबाद दिल्ली का AQI 800 पर पहुंचा, तो उसके ऑफिस के अंदर AQI 30 था. So he maintains that quality, and he now is an expert on this. You can see him on TEDx. He says, your intelligence, your reaction time, your alertness, all improves when your air quality is better. So he's done a lot of research on this, and he talks about it beautifully in TEDx. And he's done actually live experiment. Of course, we all have learned from him. We are doing a lot of these things, and we have been able to. मेरी ऑफिस में नहीं था. मेरी ट्रेनिस भी बीमार होते थे, मैं भी बीमार होता था, सबको नाक में खुजली आती थी, हेडेक होता था, इरिटेशन हो जाता था. And then we checked the air quality. We realized the air quality was really bad. All air-conditioned offices have that problem, and we made a lot of changes. So we're talking of climate change. That's हम बोलते हैं कि अहमदाबाद में फ्लडिंग क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है, लेकिन ये 600 साल पुराना शहर है. ओल्ड सिटी में तो आज भी नहीं हो रही है. शायद हम आर्किटेक्ट्स को कुछ अनलर्न करना है, कुछ रीलर्न करना है. Probably the new architecture which we learned, new urban development which we learned, missed something. Okay, next please. अपना एयरपोर्ट 2023 में बना हुआ, फ्लडिंग हो गया था. एंड आई एम श्योर एयरपोर्ट बनाया तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स रहे होंगे, बहुत अच्छी टीम रही होगी, सब कुछ रहा होगा, और इंटेंशंस भी अच्छे रहे होंगे. ऐसा नहीं कि उसने सोचा होगा थोड़ा फ्लडिंग हो तो मजा आएगा, है ना. बेचारे ने बहुत कोशिश करके जिसने भी जो भी फॉर्म ने बनाया है, बट ये हुआ. राइट, नेक्स्ट प्लीज. ये तो रेगुलरली होता है. जब ओल्ड सिटी में फ्लडिंग आज भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्यों होता है? नेक्स्ट सेक्शन. मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, यहाँ पे स्लम्स हैं, एंड उसमें बारिश में 3-3.5 फुट पानी भर जाता है, जो 15 दिन तक रहता है. So they can't use their toilets, they can't use their homes. So they said, can you help solve that problem? So I give a lot of support to various organizations to help their flooding problem. So I looked at Google, I knew what was happening. So they have a huge lake here. तो यहाँ पे तालाब है, और यहाँ पे फ्लडिंग है, और यहाँ पे रास्ता है. So I said, this road must be the dam. Next please. So ये रास्ता ऐसा है, ये गूगल इमेज है. तो ये देखिए रास्ता कितना ऊंचा, सर्विस रोड भी ऊंचा, वो अंदर खड्डा है. तो जो नेचुरली हजारों साल से पानी लेक पे जाता था, वो ब्लॉक कर दिया. अब ब्लॉक कर दिया, कैन यू गो बैक अगेन?
सो यहाँ पे फ्लडेड है, यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है इसलिए इसमें खेती हो रही, धीरे धीरे तालाब भर के जमीन दिख जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ये हो रहा है, ठीक है। एक सबसे खराब इन्वेंशन हुआ हमारे लिए, वो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट दिस वन। हम लोग अर्थ मूविंग सीख गए। So moving the earth became very easy for us, and in moving the earth we forgot about established natural contours of thousands of years, and we lost lakes in the process. We started getting flooding in the process. Like what he's saying, we forgot about water flow, obstructions बना दिए गए। तो इस आर्किटेक्ट्स हमें टोपोग्राफी चाहिए। तो अभी मेरे पास जब कुछ आता है तो सबसे पहले गूगल लोकेशन मंगाता हूँ। गूगल लोकेशन लेके आई डू अ स्टडी ऑफ द एरिया, एंड इतने सालों काम करने के बाद अब तो गूगल पे पता चल जाता है कि इनका ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या होती है। सो गूगल इमेज देख के वी से योर ग्राउंड वाटर मस्ट बी दिस लेवल, एंड देन वी कैन हेल्प देम काइंड ऑफ मैनेजिंग। सो आई थिंक देयर इज आर्किटेक्ट्स वी नीड टू लुक एट दिस। सो आवर सिटीज नीड नॉट बी फ्लडेड। Temperature. Our cities are getting warm or rather hot. I think warm is understatement. मेरी छत पे चाइना मोज़ेक का टेम्परेचर 68 to 72 डिग्रीज था, जब अहमदाबाद हम बोलते हैं 45 डिग्री पे है, क्योंकि 45 डिग्री एयरपोर्ट की कोई जगह पे मापा जाता है। गाड़ियों का एग्जॉस्ट 200 से 500 डिग्री टेम्परेचर का निकलता है। जितनी ज्यादा लोडेड कार है उतना हाई टेम्परेचर निकलता है। सो रोड्स पे द टेम्परेचर इज हायर, सो सिटीज आर मच वार्मर। ओके, सो वी हैव सिटीज लाइक दिस, huge trees, shaded roads, and there are studies which say that road in the shade is at least 30 degrees cooler than in the sun. So 72 and some 38 या ऐसा कुछ मेजर किया गया, 35 मेजर किया गया। So there are various studies which have been done which shows अगर पेड़ की शेड में रास्ता या पेमेंट है तो इट कम से कम 30 डिग्री ठंडा है। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज व्हाट वी हैव डन। आप लोग अहमदाबाद अच्छे, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ओके, बिकॉज वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट वी डोंट नीड no trees, and we don't need number of trees, we need huge shady trees. Temperature will decrease not just by having a tree but having a tree which is shading. So when I'm talking with the AMC now, I said let's get over with the number game, let's go and look at shady trees. So we are talking about totally shaded roads in Ahmedabad. Can we do Ahmedabad which is totally shaded? One architect friend said कि underground roads बना देते ठंडे होने के लिए। बोला अंडर द ट्री वुड बी इजीियर ना। नेक्स्ट प्लीज, ऐसा करते ना ये। नेक्स्ट, वी कैन डू दिस यार। हर एक ट्रैफिक सिग्नल पे अगर रेन ट्री लगाया जाए तो ट्रैफिक सिग्नल पे दिक्कत नहीं होगी। इट्स वेरी इजी, यू नो, ट्रीज cool down things tremendously. So in urban areas, if you want to cool, if you want to bring our city, make our city cooler, bring down the temperature, I think large trees, and there are beautiful trees which are very large. Like rain tree, if you buy a 16 or 18 feet tall tree, within 3 years, it will be giving beautiful shade, and a rain tree can have a diameter of 150 feet. मतलब आपने रोड डिवाइड के बीच में एक पेड़ लगाया तो पूरा रोड शेड कर दिया। इतना बढ़िया पेड़ है, और कम से कम 80-90 साल की उम्र है। तब तक तो अहमदाबाद का क्या होगा पता नहीं, है ना। नेक्स्ट प्लीज, थैंक यू सो मच। दिस इज, आई एम जस्ट टचिंग अप लॉट ऑफ थिंग्स। आई टेल यू व्हाट वी डू। We run an activity called Tree Walks, where we talk about environment, where we take people, we help connect everyone to nature, and that's how we have got all this information. So I've been doing all these things at home. We've been incorporating in our work, and this is some experience that I'm talking. This is not theoretical research. Some of it's definitely supported by theoretical research. Next, please. So I was talking about my home being carbon neutral.
अहमदाबाद का एवरेज कार्बन फुटप्रिंट पर कैपिटा इज 1.8 टन, ठीक है ना, 1.8 टन है पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट इंडियंस का, ठीक है. सो व्हाट वी डिड इज we started composting our kitchen and garden waste, which saved us around 1.25 tons of CO2 equivalent, because इसमें मीथेन बहुत है तो CO2 equivalent में मिलना है. When you grow around 200 trees, per tree 20 kg of carbon sequestration, so you get around 4 tons. Shifting to a small car instead of SUV, तो 3000 सीसी की इस गाड़ी की जगह अगर आपकी 1200 सीसी की गाड़ी है, तो you bring down your carbon footprint by 2 ton. And growing food plants, indoor plants, organic sequestration in soil, etc., you save around 1 ton. So this comes to 8.25 ton totally. So for a family of 4, you are almost going carbon neutral. अभी तो सोलर पैनल लगानी बाकी है. सोलर पैनल लगाएंगे तो विल बिकम कार्बन नेगेटिव लाइक भूटान. फिर हम बोलेंगे भूटान वाले ही है जो जितना एब्जॉर्ब करते हैं उससे कम प्रोड्यूस करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं. Thank you so much. So anyone wants to ask something? Okay.